Good morning all of you. I am Hemant Gupta. Today we will discuss about new topic that is atmospheric pressure. ठीक है, आज हम लोग atmospheric pressure के बारे में पढ़ेंगे. So first, to whom do we call atmosphere? ये atmosphere बोलते किसको है? You all know that our earth is surrounded by a layer of air which is known as atmosphere. सबको पता होगा कि हमारा जो earth है, suppose this is your earth. ये earth है. You all know that our earth is in spherical shape. Spherical shape का है. And this earth is surrounded by a layer of air. है ना? ठीक है? ये क्या है? This is your layer of air. So this layer of air is known as atmosphere. यही layer of air जो earth को surround करके रखा है, ये atmosphere कहलाता है. आज हमारा टॉपिक क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस लेयर ऑफ एयर exerts pressure on the surface of the earth. It exerts pressure on the surface of the earth. ये earth के surface पे pressure exert करता है. You can see clearly the diagram the arrow marks है. ठीक है, ये arrow mark दिख रहा है. ये arrow mark का क्या मतलब है? What does this mean? That this layer of air exerts pressure on the surface of the earth. Earth की surface पे pressure exert कर रहा है. ठीक है? It means that whatever the objects are there on the surface of the earth, it continuously experiencing, continuously लगातार ये इस pressure को experience कर रहा है. कौन? All the objects residing on the surface of the earth. सारे objects जो इस surface के ऊपर में हैं, उन सारे objects पे ये pressure लगा है. ठीक है? ये pressure कौन लगा है? Layer of air. ठीक है, which is known as atmosphere. इसी को कहते हैं ना layer of air, तो atmosphere कहते हैं. So the definition of this atmospheric pressure is very simple. बहुत simple है. The pressure exerted by the air on the surface of the earth, ठीक है ना, is known as atmospheric pressure. ठीक है. Now next question arises कि ये कितना pressure exert कर रहा है? ठीक है, pressure तो exert कर रहा है. ये layer of air इस earth surface पे pressure exert कर रहा है, लेकिन कितना pressure exert कर रहा है? So we will see. First see. What is the definition of this atmospheric pressure? The pressure exerted by the layer of air on the surface of the earth is called atmospheric pressure. ये लाइन तो बहुत सिंपल है. ठीक है, लेयर ऑफ एयर, एयर के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर, ठीक है, on the surface of the earth, atmospheric pressure. This is very simple. Now my question is कि ये कितना प्रेशर exert कर रहा है? कितना प्रेशर exert कर रहा है? See, the pressure exerted by the air is equal to the force exerted by the mass of 1 kg on every 1 centimeter square area. Try to understand this line. ये जो एयर के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है अर्थ सरफेस पे, ये किसके इक्वल है? इक्वल टू द फोर्स exerted by the mass of
1 kg और एवरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे 1 kg मास के द्वारा जितना फोर्स लगेगा उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करता है ये एटमॉस्फेयर, ठीक है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स पे जो ऑब्जेक्ट्स अर्थ के सरफेस पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए। हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसको बोलते हैं? टू whom do we call this 1 centimeter? If you take 1 centimeter as a length and 1 centimeter as breadth, अगर 1 सेंटीमीटर मैंने लेंथ लिया और 1 सेंटीमीटर सपोज ये ब्रेथ लिया, ओवरऑल जो इससे एरिया आएगा और मल्टीप्लाइंग दिस 1 सेंटीमीटर इनटू 1 सेंटीमीटर यू गेट ओवरऑल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ रहा है ये तो बहुत छोटा सा एरिया है। इस एरिया पे 1 kg के मास द्वारा जितना फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है, उतना ही प्रेशर करना है। तो यू कैन एज्यूम आप सोच सकते हैं इसमें कितना ज्यादा 1 सेंटीमीटर कितना छोटा होता है, उस पर अगर कोई 1 kg बॉडी का 1 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट रख दिया कितना ज्यादा वो फोर्स एक्सर्ट करेगा ना, ठीक है। और इसको समझते हैं। सपोज लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ माइक, ठीक है, माइक। और जस्ट मैंने क्या बोला, जस्ट मैंने समझा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया बहुत छोटा सा होता है। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ माई पाम? मेरी हथेली का एरिया कितना होगा? अगर 1 सेंटीमीटर इतना छोटा है तो अप्रोक्सीमेटली वी कैन एज्यूम दैट द एरिया ऑफ माई पाम इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सपोज, ठीक है। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे 1 kg मास के फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो पूरा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे कितना फोर्स की इक्वल, कितना मास की इक्वल फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा? 100 kg। सो एज्यूम, आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम करके देखिए कि अगर इस पे 100 kg का मास, 100 kg के मास के द्वारा लगाया हुआ जितना फोर्स है उतना प्रेशर ये फील कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा हम फील कर रहे हैं अभी? अगर ये पाम पे अगर इतना प्रेशर लग रहा है तो ओवरऑल बॉडी पे कितना लग रहा होगा? ओवरऑल बॉडी पे कितना लग रहा होगा? बहुत सारा, बहुत ज्यादा लग गया, ठीक है। इट मीन्स आवर बॉडी शुड गेट क्रस्ट, हमारा बॉडी को तो क्रश हो जाना चाहिए था जितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे 1 kg मास के फोर्स के इक्वल एक्सर्ट होता है, ठीक है। तो इस पूरे बॉडी पे कितना होता होगा? बहुत ज्यादा हो गया। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। वी डोंट फील एनीथिंग, वी आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर विदाउट एक्सपीरियंसिंग एनी टाइप ऑफ प्रेशर, ठीक है। हमें तो कोई ऐसा प्रेशर एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, हम तो आराम से इधर मूव कर रहे हैं। बट इन रियलिटी कंटिन्यूअसली लगातार हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है which we are not feeling. Why? What is the reason? The reason is that the fluids contained inside our body, the fluids contained inside our body, हमारे बॉडी के अंदर में जो फ्लूइड्स कंटेंट है, फ्लूइड्स जैसे कि वाटर है, ब्लड है, ये जो है वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में जितना कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे की तरफ का नाम है, प्रेस करता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेस करता है। ये एक लेयर अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थ के सराउंडिंग में जो लेयर है वो लेयर अर्थ के सरफेस पे जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है उन सबको प्रेस करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है उन सबके ऊपर, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन हमारा बॉडी क्यों नहीं क्रश हो पा रहा है? व्हाई डोंट आवर बॉडी गेट क्रश? बिकॉज आवर बॉडी इज ऑल्सो एक्सर्टिंग प्रेशर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन आवर बॉडी, ठीक है। हमारे बॉडी में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, विच कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ में आई? ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट फ्लूइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस करता है? प्रेशर। वो प्रेशर एक्सर्ट करता है और ये वो प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट को कैंसिल करता है, ठीक है। सो वी कैन से हियर दैट human body exerts equal pressure in the opposite direction due to the presence of the
presence of fluids inside the body which cancels the effect of atmospheric pressure, which is continuously acting on our body. Try to understand this. ह्यूमन बॉडी भी उतना ही प्रेशर लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में. किसकी वजह से लगा पाता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इनसाइड द बॉडी. ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर में ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ये फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है, व्हिच कैंसल द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है. ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या, व्हिच इज कंटिन्यूअसली एक्टिंग ऑन आवर, लगातार लग रही है लेकिन वो लगातार कैंसिल भी हो जाए. दैट्स व्हाई वी आर नॉट फीलिंग एनीथिंग. मैं हम लोग किसी तरह कोई प्रेशर फील नहीं कर रहे होते कुछ कोई प्रेशर नहीं लग रहा होता. ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी कंटिन्यूअसली इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट को कैंसिल आउट करता है हमारे बॉडी के अंदर में जो फ्लूइड प्रेजेंट है. ओके, होप यू आर गेटिंग. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज here exerts pressure in all directions. Here जो है वो सारे डायरेक्शन में प्रेशर exert करता है. I think you have gone through this topic in your previous class. This topic is very easy. Here exerts pressure in all directions. सारे डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं. Here. Let us try to understand this topic with the help of one activity. So, in this activity, I consider one plastic. मैंने एक प्लास्टिक बॉटल कंसिडर की. ओके, कंसिडर वन प्लास्टिक बॉटल. मैंने एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल कंसिडर की. अगर ये भी एम्प्टी है, इट मीन्स इसके अंदर में क्या है? अभी इट कंसिस्ट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स. इसके अंदर में तो एयर मॉलिक्यूल्स है ना. वी कांट से इट इज कंप्लीटली एम्प्टी. अभी भी इसके अंदर क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, नाउ आई वांट टू टेक आउट ऑल दीज एयर मॉलिक्यूल्स. मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो सब बाहर आ जाए. ठीक है, आई वांट टू एक्सैक्ट ऑल द एयर मॉलिक्यूल्स व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस प्लास्टिक बॉटल. प्लास्टिक बॉटल है तो इसके अंदर का जितना भी एयर मॉलिक्यूल्स मैं चाहता हूँ कि सब बाहर आ जाए. प्लास्टिक बॉटल. सो फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है? यू हैव टू पुट सम हॉट वाटर. ठीक है, मैं इस प्लास्टिक बॉटल में कुछ हॉट वाटर डाला हूँ. ठीक है, और यू कैन से वार्म वाटर. फ्रॉम दिस वार्म वाटर ऑब्वियसली स्टीम विल कम आउट. And the main function of this steam is to exhale almost, not you can say almost all the air molecules which is present inside this plastic bottle. ठीक है, ये जो steam है, ये क्या है? ये steam है. ये steam क्या करेगा? इस प्लास्टिक बॉटल के अंदर में प्रेजेंट जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसको बाहर की तरफ, ऑलमोस्ट तकरीबन सारे एयर मॉलिक्यूल्स को बाहर की तरफ एक्सहेल करेगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आफ्टर 2 minutes you have to seal this open end. ठीक है, ये जो ऊपर वाला ओपन एंड है इसको फिर ढक्कन से बंद कर देना और उसको एक मैं दूसरे कंटेनर का यू कैन सी हियर दिस इज ट्रफ TROUGH. दिस इज वन टाइप ऑफ कंटेनर. ठीक है, इतना कंटेनर which consists of chilled water. इसमें क्या है? chilled water. Chilled water means it will let us consider some cubes of ice. उस आइस के मैं क्यूब्स इसमें कंसिडर कर रहा हूं. ठीक है, इसमें क्या है? chilled water. Chilled water. Now
व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको, टाइट दिस ओपन एंड, ठीक है, विथ कैप से इसके ओपन एंड को टाइट करके और इसमें इन दिस व्हाट विल हैपन, इस स्टफ में मैं डाल दूंगा, ठीक है, और इसका जो ऊपर वाला ये है इसको मैंने टाइट कर दिया। व्हाट विल हैपन, जैसे मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम when the steam inside this, इसके अंदर में क्या है, स्टीम है, इसके अंदर का जो स्टीम है ये सराउंडिंग का जो चिल्ड वाटर है ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर का स्टीम कंडेंस कर जाएगा, कंडेंस होने से क्या होगा, सब जो भी स्टीम है सब ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप लोग, यू कैन सी दैट दिस वाटर विल गेट क्रस्ट, ये वाटर क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा, ये वाटर कुछ ऐसे क्रस्ट हो जाएगा, दिस इज योर क्रस्ट वाटर। सो व्हाट डज दिस कंक्लूड, ये क्या कंक्लूड कर रहा है, ये क्या सिखा रहा है हमें, ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये क्रस्ट हो गया, क्योंकि अंदर का जो एयर मॉलिक्यूल जिसको मैंने स्टीम की मदद से बाहर एक्सटेंड कर दिया था, तो अंदर का एयर मॉलिक्यूल तो रहा नहीं अब, ठीक है, तो अंदर का जो प्रेशर है ऑब्वियसली बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इसको इन ऑल सारे डायरेक्शन से इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगी जो इसको क्रस्ट कर देगा, ठीक है, इसको पूरा पिछड़ा देगा, इसको दिस इज क्लियर, बात समझ में आ रही है, दिस इज वेरी सिंपल। ये ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डज दिस बॉटल गेट क्रस्ट, ये क्यों क्रस्ट हो गया, ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर के डिफरेंस, अंदर का जो प्रेशर था वो कम गया, क्यों कम गया, क्योंकि अंदर में जो एयर मॉलिक्यूल्स पहले था, जो अंदर में एयर मॉलिक्यूल पहले प्रेजेंट था, ठीक है, उसको तो मैंने बाहर निकाल दिया, अब बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया एज कंपैरिजन टू द इनसाइड प्रेशर, अंदर के प्रेशर से बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया और वो प्रेशर इस बॉटल को क्रस्ट। This experiment is very simple. You can see that this bottle will get crust from all the directions. ऐसा नहीं कि कोई एक ही डायरेक्शन से क्रस्ट होगा, सारे डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन से क्रस्ट हो जाएगा। That's why we say that air exerts pressure in all directions. सारे डायरेक्शन से air pressure exert होता है. Okay? So this much for today. Now we will discuss next topic in my next class. Thank you.